opportunity to introduce the Member of Advisory Council of IABM, Professor D.P. Saxena. Sir is a BSc Gold Medalist, BTech, MTech, and MBA in Finance. He joined Indian Engineering Service through UPSC in 1973. He has worked with some of the renowned corporate houses like SKF, Atlas Copco, Tetra Pak, Duopont Flexible, Pampac, and Scholl India. He completed his BTech and MTech from People's Friendly University, Moscow, and MBA in Finance from Leeds University, UK. He was a part of the delegation of Rajiv Gandhi's team for technology transfer to India. I request Sir to kindly share your knowledge with our new batch. Yes, go. Should we start? No, it's okay. Respected Managing Director, the members of the staff, the parents of some of the candidates, and ladies and gentlemen. Now, I am going to tell you something, how you can make your life and you can make your career. I'll tell you before that I myself was from middle class family, from UP, knew very little English, Hindi medium में पढ़ा था, and then for job or for final studies I came to Wadia College, Pune. It was difficult for me even to talk few sentences in English, forget about the whole thing. But as I'll show you in few minutes, the determination was there that I have to be successful in life, I have to move further. And to start with, for example, I'll just tell you एक small poem की lines हैं. गम एक अनुभव है, गम समझते हैं आप लोग, दुख. गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है. खुशी एक एहसास है जिसकी हर एक की तलाश है. पर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसमें खुद पर आत्मविश्वास है. We have all passed through the difficult phase of life. कुछ ना कुछ पर्सनल गम प्रॉब्लम्स हमेशा सबको रही हैं और रहती हैं. एंड वी वांट टू मूव फर्दर, वी वांट टू फील हैप्पी. बट उसके लिए क्या करना है? मेन थिंग इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अभी जैसे विल जस्ट शो यू वन आफ्टर अनदर. बेसिकली वी वांट टू ग्रूम यू कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहे. आई कैन जस्ट टेल यू that when I started working in Pune, I used to get 550 rupees per month salary. And when I retired as the managing director of DuPont, a American company, my annual income was 1 crore 13 lakhs. Imagine कि वो 550 रुपए से कहाँ पहुँचने वाली बात है. And that was all. It's not from any book, it is based on the facts of life, that how it was achieved.
पहला दिखाइए. We want that by the time you complete your course, you shall establish new goals for yourself. मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है आपको डिसाइड करना है. I want to be the CEO of a company, or I want to be managing director of the company, or I want to be chairman of the company, or I want to be nominated member of the Rajya Sabha because I am a good industrialist, or I want to start my own factory. That establish new goals for yourself. Develop a sense of purpose. करना क्या चाहते हैं. मुझे अपना फैमिली संभाल के रखने का है, फैमिली के साथ में रहूँगा, बच्चों को खुश रखूँगा, कुछ करूँगा, ये होए रखेंगे. एंड नेक्स्ट इज जनरेट न्यू आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ. जो हो गया फॉरगेट योर पास्ट. 8वीं में क्या हुआ, 10वीं में क्या हुआ, 12th में क्या हुआ, ग्रेजुएशन में क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट दैट. कितने % मार्क्स हैं. हार्ड वर्क इज ए सब्सटीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. रिमेंबर दैट. हार्ड वर्क इज ए सब्सटीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. कोई आदमी जो इंटेलिजेंस हम लोग मदद नहीं कुछ नहीं कर नहीं सकते, कोई जेन्स पे होती है. हमारे अगर मम्मी पापा इंटेलिजेंट हैं तो बेटा भी इंटेलिजेंट होगा. बट हार्ड वर्क अगर जो आपके साथी को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, आप 3 बार पढ़िए, रट्टा लगाइए. हार्ड वर्क इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस, एंड दैट इज व्हाट जनरेट न्यू आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ, गारंटी योर सेल्फ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेस. मतलब ऐसा कीजिए. अभी और इसमें ट्रांसपेरेंसी में भी देखेंगे कि डिसाइड कीजिए कि मुझे 35 साल की उम्र तक क्या बनना है. आई वांट टू बी जनरल मैनेजर बाय एज ऑफ 35. आई वांट टू बी वाइस प्रेसिडेंट बाय एज ऑफ 40. आई वांट टू बी दी मैनेजिंग डायरेक्टर बाय एज ऑफ 45. एंड यू कैन अचीव दैट. बट उसके लिए क्या क्या करना होगा मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा. नेक्स्ट प्लीज़. व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. एक आई रिमेंबर वी इंटरव्यूड ए गर्ल. उसको मैंने ऐसे ही देखा, मैंने बोला देखो तुम मम्मी भी टीचर हैं, पापा भी टीचर हैं, तुम इंजीनियर कैसे बन गई. तो वो लड़की बोलती है नो सर, एक्चुअली मैं अगर इंजीनियर होंगी तो कम से कम मेरा हस्बैंड इंजीनियर होगा, नहीं तो अगर मैं बीकॉम कर लेती तो मेरा घर वाले भी मेरी शादी कर देती, मैं भी टीचर बन जाती कहीं पे. तो दैट इज़ व्हाट यू वांट टू अचीव. How you expect to achieve it, and when you plan to achieve it. अभी देखिए how you expect to achieve this, I'll just tell you. अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे इन बॉम्बे पुणे रोड पे there is a company called Atlas Copco, a Swedish company. They make compressors. It's a multinational company. The managing top boss is always a foreigner. And I was a engineer. I did BTech, I did MTech. But every month I was working for as a plant manager for 2 factories, Dapodi factory and Chakan factory. And every month, first Monday of the every month, I'll be called in Bombay. I'll get a good firing because finance में ये variance बढ़ गया, labor inefficiency variance बढ़ गया, overtime बढ़ गया, inventory बढ़ गई है, rework variance बढ़ गया, and I didn't know what is variance because engineering college they don't teach you these financial terms and financial things. And then first thing I did was, Pune mein there is a place called Appa Balwan Chowk. I went there, bought a book for BCom, जिसमें question answers exam की तैयारी करते हैं. And I used to sit in our guest house on Saturday, Sunday on holiday and make personal notes. What is this, what is this, what is this, what is this. And then what so happened that after about 2 months or 1.5 months, as soon as the financial manager, Mr. Shirsagar, will send me report, whole night I'll sit at home and find out about 10-15 mistakes in that. And then I'll challenge next day. Those days emails were not there, only telex was there. I'll send a telex to managing director कि I've received the budget financial report of profit and loss account and the balance sheet for the month of May or June or whatever it was, and following mistakes are there. So please don't consider it unless you get the final. And then the finance manager, he used to jump. How Saxena knows what are the mistakes. And I'll challenge him. I'll say, show me. If you have kept labor variances there, that means extra money has been paid to the laborers. It could be only either you keep on more overtime or you keep the casual workers. Show me for both. Approval is required. Show me the paper that I approved it. So that's why this clause, how you expect to achieve it. You have to learn
wherever you are working, what is required. The same thing happens. The companies where I was working, they had a very strong union, very strong union. And George Fernandez was the railway minister at that time, and the union was theirs. And I'm talking about early 80s or mid 80s. And they were forced to reckon with. And I didn't know कि आदमी को पहले सस्पेंड करते हैं या वार्निंग लेटर देते हैं या कैसे रिटन वार्निंग होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए. एंड आई वॉज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव but to do MBA course, an MBA course where I took a study leave from company. HR and finance specialized in these two things because that was day-to-day working के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. You know, अगर if you are working in a factory, when you plan to achieve it. Now, I had set up my personal life plans much in advance. I graduated, post-graduated, and then I decided that by this age, I want to be general manager. And I found that the SK where I was working, it was not possible to get the general manager's position because my boss, who was head of the department, he was well settled in Pune. There was no reason why he should leave. And a company like SKF, they will not create two positions, parallel post. So I decided, I have decided to apply for interviews here and there, and I joined a company in Himachal Pradesh. Imagine from Pune going 1,500 kilometers north in Himachal, just because I knew that will be, I am going there for 3-4 years, and then that will jumping a step in career wise, that will be another step. And the same thing I did. After working there for 4 years, learning more things, I tried and got a job in Atlas Copco here as a plants manager. Okay, next please. People fail not because of lack of intelligence. Intelligence की ज़रूरत नहीं है, fundamentals intelligent होना चाहिए, but because of lack of desire, direction, dedication and discipline. This is important. Direction, dedication and discipline. Self-discipline. मुझे I remember I was in SKF चिंचोड़ में Pune से, that time I was bachelor staying in one of the lodge in opposite Ferguson College. I used to walk up to the Shivaji Nagar railway station, take a local train up to Chinchwad, get down at Chinchwad and then walk up to the SKF. And I don't remember even single day I was late. And that is what it was: dedication, discipline and direction, all three. Next. Make yourself 100 marks. Now this see, put a ABCD if you give the numbers. There are 26 alphabets and just next please, one after another. Skill is not important. If you see ISKILL, total you get 82 marks. Knowledge, you can go on learning, you get 96 marks. Next. Hard work, you get a higher marks for sure. And the last is 40, which is the main. The last is 100. Attitude towards the work for which you have been taking. Attitude towards your friends, colleagues, seniors, juniors. That is what is important. And that is something, attitude will take you in your life long ahead. So ये जो है skill, knowledge, hard work, and what is important is attitude. And let me tell you, this institute will give you possibility of even the being a member of Rotaract. Rotaract is a part of the Rotary Club International, which gives you, for example, polio, which used to be a sickness all over India. It's almost eradicated in India, and basically Rotaract people have worked on that. I remember your institute for 10-12 years. There are plenty of volunteers. वो घर घर जाते हैं, वो जो पोलियो डे होता है, वो मदर को बोलते हैं, इन्फेंट जिनके बच्चे होते हैं, कि आके उसको डोज, पोलियो का एंटी पोलियो डोज दिलाइए. और कई मदर्स एग्री होती हैं, कई मदर्स एग्री नहीं होती.
खासतौर से पूना में अगर आप देखें, पूना के आजू बाजू में स्लम्स में आइदर देयर लेबर फ्रॉम बिहार और फ्रॉम यूपी और फ्रॉम द साउथ, एंड ऑल ऑफ देम हैव द इन्फेंट किड्स, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उनको बेचारों को नॉलेज ही नहीं है कि पोलियो की एंटी पोलियो डिजीज़ लेनी चाहिए, ड्रॉप लेनी चाहिए। एंड आई I remember the thought had come from some of you, who were the Rotary member that time. कहते हैं सर उधर लोग नहीं आते हैं, ऐसे लेडीज़ नहीं आ रही हैं, हम उनको ऐसा करते हैं, एक चम्मच जो भी अपने बच्चे को ड्रॉप जाएगा एक चम्मच गिफ्ट देंगे। एंड रोटी क्लब गेव द गिफ्ट, नेक्स्ट ईयर वी गिव द कटोरीज जो भी, एंड देन द लॉट ऑफ लेडीज़ केम विद द किड्स, क्यों में वो एक एक करके जो भी अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप लगवाती है एक कटोरी लेके जाओ। और देखा जाए एक तरह से वी आर मैड, वाई वी शुड स्पेंड मनी, बट नो, इट इज़ आवर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is our thought for future. We want India a disease free country. We are not politicians, but this thought has to come. I'm sure if once you are here and you study with open mind, these thoughts will come to you. Next. Now attitude. Build a positive, main thing is build a positive attitude. मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, मुझे सुबह उठना है, वॉक पे जाना है या जो भी करना है, शाम को मुझे लाइब्रेरी में जाके बैठना है, क्योंकि रूम में क्या होता है आई डोंट नो, आप लोगों के इंस्टीट्यूट में भी आपके बैच में क्या होगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट योर फ्रेंड्स कम इन योर रूम एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्टडी. You approach the management that library should be open up to 10:30 in the evening, so that if in your room there is a masti chal rahi hai, music chal raha hai, so you are coming and studying here. And this attitude, alter your lives by altering attitude of mind. You have to think positive. मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे जल्दी सुबह उठना है. And then that is what the attitude is. Next please. Then I'll just show you, total I'll show you about 4. होता क्या है, देखिए आपने आइसबर्ग देखा होगा, नहीं सुना होगा, जो बर्फ़ होती है वो ज़मीन के पानी के अंदर कितनी होती है, पानी के ऊपर कितनी होती है, समुद्र वगैरह में, नॉर्थ सी वगैरह में देखें तो 10% के करीब ऊपर होती है, बाकी 80-90% नीचे होती है. नेक्स्ट कंटिन्यू प्लीज़. Only 10% of any iceberg visible, remaining 90% below the water. आपको ये जो पानी के अंदर है उसमें अपना जो आपके अंदर के रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, उसको यूज़ करना है. ऊपर जो 10% है वो कितने मार्क्स आए, 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने आए, किधर क्या है, घर वालों में कितना है, कितने दोस्त हैं, ये सब पे डिपेंड करता है. बट करियर के लिए, ज़िंदगी के लिए और इस इंस्टीट्यूट के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर पोटेंशियल, कि 90% जो अंदर छुपा हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. विजिबल अबव सी इज 10%, बिलो इज 90. नेक्स्ट. द आइसबर्ग फिनोमेना इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, हम सब के लिए. नेक्स्ट. नॉलेज एंड स्किल, जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे नॉलेज एंड स्किल वो यूज़ कीजिए. और मेन थिंग आपका एटीट्यूड, कि मुझे ठीक से ड्रेस अप होना है, मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, मेरे जूतों पे पॉलिश होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चल दिए, बिकॉज देन यू आर नो मोर MBA स्टूडेंट, यू आर खेड़े गाँव जिसको बोलते हैं, किसी गाँव के हो सकते हैं वहाँ से जैसे आए. नेक्स्ट प्लीज. इन अदर वर्ड्स बिहेवियर. यहाँ पे देखिए, दिस इज आई बीन इन पूना फॉर अबाउट मोर देन 45 years now, and I have seen practically all the management institute. The way this institute is kept, housekeeping, the way you all dress up, etiquettes, manners, escort करना, ये these are all the things जो corporate world में काम में आती हैं बाद में यहाँ पे. और that is what at least this opportunity is giving you all the possibilities. Housekeeping, how to keep it clean, how to keep it neat, how to dress up, how to what all to do, which is not in every MBA institute में possible नहीं है. पूना के MBA institute में possible नहीं है. I have practically visited all the MBA institutes one way or another. Next.
देखिए, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, वैल्यूज रखिए, इंटेग्रिटी। द वर्स्ट थिंग कैन हैपन कि अगर कोई आदमी बेईमान हो जाता है। कीप वैल्यूज, मेंटेन स्टैंडर्ड कि मुझे प्रोजेक्ट करना है समर विंटर वैकेशन में या समर वैकेशन में, इट हैज़ टू बी हायर देन द अदर स्टूडेंट्स। एंड जजमेंट, बुक्स के लिए पढ़िए, मोटिव्स, एथिक्स एंड बिलीव्स। और बिलीफ में मेन ये, यू हैव टू कीप ए बिलीफ दैट आई हैव कम हियर फॉर स्टडीज़, माई पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन मी, आई एम अवे फ्रॉम द फैमिली, आई एम मिसिंग माई ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, and I have to, their aim was that I should become a good citizen, a good corporate citizen, and I should do that. So motive, ethics and beliefs. Next. You can do everything but not at all at once. Remember that. ऐसा नहीं कि मैं इधर भी होऊंगा, उधर भी होऊंगा, उधर भी होऊंगा। अगर सब जगह होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, but that will be difficult. You can do everything. It's important enough for you to do. You can do everything, but you may not be the best at everything. You can do everything, but there will be limitation. You can do everything, but you need help. Fair enough. These are the ways how to grow. Next, please. Main thing again, I'll use it, I repeat again. Positive thought is the seed of the positive results. You have to think कि मुझे ये करना है, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगी, मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं. You know, if you do not like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. Do not complain. ये नहीं कि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, मैं थक जाता हूँ, मैं थक जाती हूँ, वो नहीं चलेगा. The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitude produces right actions. If you really want to be happy, nobody can stop you except God. You plan कीजिए अपना. Okay, next please. Whether मेन बात ऐसे जैसे ग्लास में अगर है आधा पानी भरा हुआ है, आधे गिलास में आधा पानी है, तो अभी सोचने का ढंग है. आप बोलेंगे आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है. हम लोग इंटरव्यूज़ में क्या देखते हैं, अगर कोई बोलता है कैंडिडेट आधा गिलास खाली है, इसका मतलब नेगेटिव थिंकर. आधा गिलास भरा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव थिंकर. एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. वेदर ए ग्लास इज हाफ full or half empty depends on the attitude of the person looking at it. There is a better way of everything. Find it. और क्या कह सकता है. पीछे साहब, आधा भरा है, पूरा भरा है, कोई मांगता है गैस तो बात दूसरी है. The positive attitude is not a destination, it is a way of life. हर एक चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड सोचिए. ऐसा नहीं कि अरे मैं ऑलरेडी लेट हो गया, अभी बस निकल गई होगी. अरे सोचिए बस निकल गई होगी, कोई बात नहीं, 6 सीटर होगा उधर. 6 सीटर नहीं होगा, ऑटो रिक्शा होगा. यू नो, तो कहीं जाने के लिए ऐसा नहीं कि वो बस हो 7 बजे बस्ती निकल गई, अभी मैं क्या करूं. अरे गो 6 सीटर्स के बोलो, ऑटो रिक्शा वाले को बोलो, कुछ और बोलो. दैट इज यू हैव टू फाइंड द वे. पॉजिटिविटी इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज बट रेदर लैक ऑफ द विल. विल मतलब मैं करूँगा, विल पावर जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट. The positive thinker sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. देखिए, अगली बार आपको मिलूंगा, बताऊंगा कि impossible कैसे अचीव करते हैं. The man with confidence in himself gains the confidence of others. If you only go as far as you think you can go, the biggest mistake all is to avoid situation is which you might make a mistake. ये सोचना कि अरे मैं तो गलती करूंगा अगर मुझे दिया प्रोजेक्ट. अरे वो तो सबसे बड़ी गलती है. पढ़ो सब्जेक्ट, टॉपिक, स्पेशलिटी, इतना लिटरेचर है इंटरनेट पे, ईमेल पे, बुक्स में, इसमें करने का है. मुझे असाइनमेंट दिया है, करो. मैं करूँगा, मैं करूँगी. नेक्स्ट. पॉजिटिविटी इज लाइक ए मैग्नेट फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स. आवर लाइफ इज a reflection of attitude. A positive attitude creates a chain reaction of positive thoughts. Attitude not aptitude. Aptitude बोलते हैं भूख लगी है जैसे. Attitude not aptitude determines your attitude. No man fails if he does his best. अब
अपना वो जो भी है, अगर आपको मालूम है ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरनेट में पढ़िए, बुक्स में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए। क्योंकि देखिए कंपनीज में ऐसा होता है कि जहाँ पे जगह होती है वो असाइनमेंट आपको देंगे, दे विल नॉट गिव द असाइनमेंट व्हाट यू वांट। शुरू में जहाँ पे उनको जगह है अगर उनको वो वाला देंगे, बट यू में धीरे धीरे यू में चेंज ओवर, रिक्वेस्ट करके, अच्छे रिलेशन करके, एटीट्यूड करके, इसमें आप परफॉर्म वेल हियर, देन दे विल कंसिडर कि यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट, sooner or later these will win are those who think they can। सोचिए कि मुझे ये करना है, आप कर पाएंगे। और ये अगर हिम्मत ही हार गए शुरू से, मुझे मैं नहीं कर सकता, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे वो प्रॉब्लम होगी, तो आप कहेंगे। ए क्रिएटिव एटीट्यूड इज़ द फ्यूल ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। आइदर आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक द वे। ऐसा है कि जैसे नहर का पानी होता है ना, नदी का पानी, वो अपने आप बरसात का पानी रास्ता ढूंढ लेता है, किधर ऊंचा है नीचा है। ऐसे ही आपको करने का है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, फॉरगिव अदर्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। ऐसा है, हम लोग गलती भी करते हैं, करेंगे भी, और लोग भी गलती करते हैं। ऐसा मत करो तूने गलती की है। इवन लैंग्वेज विच यू यूज़, अरे ऐसा भी हो सकता था यार, इसके दूसरा ऐसा भी हो सकता था, यू नो। ओके, नेक्स्ट। नो, अभी मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ। अनदर, एक थे एटीट्यूड, सेकंड इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क। इवन क्वालिटी मीन्स इट्स नॉट कि वो जो काम कैसा कर रहे हैं, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू वॉक, द वे यू कीप योर बुक्स, व्हाट, ये सब क्वालिटी में आता है। I think I was the other day I was talking to your dean, and बात में ऐसा हुआ कि I had a my boss lady Poonawala, Mrs. Poonawala, she was chairperson that time of Tetra Pak group, Alpha Level group, and once in a way I used to meet her in the evening. I was working as CEO, she was my boss, and let me tell you, it's difficult to have a lady as a boss. So वो क्या हुआ, she spoke nicely, she will talk nicely when I say, when she say धीरेन बात करेंगी, when the moment she said Mr. Saxena, इसका मतलब मुझे को फायरिंग मिलने वाली है। एंड मीटिंग अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक था, प्रोडक्शन कितना निकला, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, ये सब जो भी होता है मार्केटिंग का, सेल्स टर्नओवर कितना हुआ, ये सब हुआ, वो हुआ। दैन मैं गॉट अप, निकलने लगा दरवाजे के पास, तो बोलती है मिस्टर सक्सेना, आई डोंट लाइक दिस। एंड मैं मन में सोचा कि सब कुछ तो ठीक हुआ है, वाई शी इज सेइंग दैट। एंड शी सेड यू आर ए सीईओ ऑफ द कंपनी, तुम वो जूते पहने हुए हैं, उसकी एड़ी घिसी हुई है, रिमेंबर, यू नो। एंड विच आई, मेरे क्या था, जो भी वो जूते 3-4 जूते जो पॉलिश का होता था वो पहन के चला जाता था, नो। बट दिस इज ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ़ यू आर इन, एंड आई वॉज ऑल्सो टेलिंग समबडी, आज ही बात हो रही थी आपके इंस्टीट्यूट में, कि इफ़ आई वॉज इन वर्किंग फॉर अल्फा लेवल और टेट्रा पैक, अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा फैट हो गया है, शी वुड हैव सेंड मी टू तलवलकर्स जिम में, 5 किलोग्राम वेट कम करो तब आओ वापस, एंड कंपनी विल पे फॉर द फीस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन मल्टीनेशनल, लेट मी टेल यू। सो डोंट टेक इट एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू डू ऑल दिस, यू हैव टू मेंटेन योर अपीयरेंस। अभी फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेल यू, एंड ऑल्दो आई एम टेकिंग लिटिल लॉन्गर टाइम, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आते हैं, एंड आई मस्ट एम्प्लॉयड क्वाइट अ फ्यू हंड्रेड इफ नॉट 1000 पीपल इन माय करियर। तो मैं तो ऐसे देखता था, यहाँ पे उसने लड़का है तो मूंछ बनाया, शेव किया है, कितने बाल छोड़े हैं यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे बाल छोड़ सकता है तो प्रोडक्शन भी ठीक से, क्वालिटी का इशू होगा। यस, आई लास्ट हिम कि अच्छा वो सब वो ब्रीफकेस लेके आया, या 10th का मार्कशीट दिखाना अपना, अगर वो उसने खोल के ब्रीफकेस एक कागज़ निकाल के दे दिया, इसका मतलब इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर वो इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, इसका मतलब इज डिसऑर्गेनाइज्ड। कंपनी का क्या करेगा, मेरे को ISO 9000 का अप्रूवल लेने के लिए प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट दिस इज व्हाट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी।
become people with character, integrity, good values and positive attitude, build positive self esteem. मैं सेल्फ इस्टीम बोलते हैं जैसे खुद को, मुझे क्या हूँ, मैं क्या बनना है, मैं ये कर सकता हूँ. नेवर थिंक नेगेटिव कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी. क्यों नहीं कर पाएंगे? 24 घंटे तो सबके पास है. आपको कम सोना है, दूसरे लोग 8 घंटे सोते हैं, आप 6 घंटे सोइए, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जल्दी उठिए. नेक्स्ट. अभी देखिए लीडरशिप. फर्स्ट वाज एटीट्यूड, सेकंड इज लीडरशिप एंड थर्ड इज अनदर. आई विल जस्ट टेल यू. इससे मालूम है आप लोगों को वो कहानी, पर उसमें चलिए नेक्स्ट प्लीज. लीडरशिप डेफिनेशन, लीडरशिप कोटेशन, 10 वेज ऑफ इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल. देखिए आप लोग एमबीए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बीए या बीकॉम या बीएससी के बाद में सीधा नौकरी कर रहे हैं. आप एमबीए कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर अज्यूम टू बी इन ए पोजिशन दैट यू हैव जॉब इज़ टू डायरेक्ट अदर्स. खुद भी काम करना है और उनको डायरेक्ट भी करने का है. तो 10 ways to improve the leadership and future leaders. So quickly you go for 1 and 2 and then you go 10 ways of improve leadership. Next. ये देखिए इसमें ये जस्ट एग्जाम्पल, मुर्गियाँ हैं और वो जो आगे वाली मुर्गी है जो नदी क्रॉस कर रही है, शी इज़ सेटिंग द एग्जाम्पल, शी इज़ द लीडर. नेक्स्ट. ऐसे ही जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है मैनेजमेंट में, वो जो यहाँ पे टेबल के ऊपर खड़ा है पर इधर जो बैठा हुआ है, ही इज़ द लीडर. नेक्स्ट. Leadership is a function of knowing yourself, having a vision that is well communicated. मतलब औरों को पता होना चाहिए. Building trust among colleagues. ऐसा नहीं बोले अरे यार वो चालू आदमी है यार, तूने उसको क्यों बता दिया. ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे. And taking effective actions to realize and own your leadership potential. ये एक साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट के वारेन बेनिंग्स लिखा है और पीटर ड्रकर. हम लोग के टाइम में खाली पीटर ड्रकर की बुक्स होती थी. द ओनली डेफिनेशन ऑफ द लीडर इज समवन हु हैज फॉलोअर्स. नेक्स्ट. द की इंग्रेडिएंट इन लीडरशिप इज नॉट पावर बट इन्फ्लुएंस. ऐसा नहीं कि मैं पावरफुल हूँ, दादागिरी करता हूँ इसलिए मैं लीडर हूँ. नहीं, इन्फ्लुएंस कितना है. मैं इनको बोल दिया आपको भाई ये संभालना, वो संभाल, हाँ साहब फिक्र मत करो मैं संभाल लूँगा, देन यू आर ए लीडर. The process of influencing the behavior of other people towards group goal is the way that fully respects their freedom. Next. ये देखिए इसमें कौन लीडर होगा बत्तखों में, बताइए इसमें. फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन सामने देख रहा है, कॉन्फिडेंस से वॉक कर रहा है, पीछे वाले वो ऑटोमेटिकली फॉलोअर बन जाए. कोई नीचे देख रहा है, कोई साइड में देख रहा है, कोई ऊपर कर रहा है. फर्स्ट वन इज द लीडर एंड यू हैव टू बिकम वन ऑफ देम. नेक्स्ट. Do not tell people how to do things. Tell them what to do and let them surprise you with their results. मतलब ये मत बोलो तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर. उनको बोलो नहीं भाई देखो भाई इतनी तारीख को ये करना है फंक्शन. जैसे आज इंडक्शन का प्रोग्राम है, जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया है कि इतनी तारीख को 20 इंडक्शन का प्रोग्राम है, एंड ही और शी शुड कोऑर्डिनेट कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, सफाई क्या होगी, एयर कंडीशन काम कर रहे होंगे, फोटोग्राफर आ रहा होगा, लाइट कैसी होगी, प्रोजेक्टर कैसा होगा, क्या होगा, सबके तैयार हैं, कौन कौन आने वाला है वगैरह वगैरह. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. टॉप 10 वेज टू इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल. ये देखिए ना चील उड़ती आ रही हैं. चील समझते हैं आप लोग, बर्ड होती है नॉर्थ इंडिया. तो देखिए आगे चलिए. नेक्स्ट. हैव ए क्लियर विजन ऑफ योर सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड. कि मुझे क्या करना है, इसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है. यू शुड थिंक उसको कितना काम मैं दे सकता हूँ, क्या काम दे सकता हूँ, कैसा कितना काम दे सकता हूँ. लिव इन अकॉर्डिंग्स विद द मॉरल्स एंड द वैल्यूज. लीड अदर्स विद इनकंक्लूसिव एंड कंपनसेशन एंड कंपेशन. देखिए नेक्स्ट प्लीज. मैं बताऊं, कोई भी काम आप प्लान कीजिए, डे टू डे वर्किंग या हो चाहे इधर पढ़ाई का हो या कुछ काम कर रहे हो. फर्स्ट थिंग इज़ प्लान, सेकंड इज़ कम्युनिकेट, थर्ड इज़ रिव्यू एंड फोर्थ इज़ कंट्रोल एंड फिफ्थ इज़ रीप्लान. कुछ भी हो, पहला प्लान कि मुझे ये घंटा इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा. दूसरा कि जो रूम पार्टनर है उसको बोलो मेरे को डिस्टर्ब मत करना, या तुमको जाने का तो बाहर जाना, मैं नहीं आने वाले हूँ.
कम्युनिकेट। थर्ड इज़ रिव्यू कि उतनी पढ़ाई हो पा रही है नहीं हो पा रही। फोर्थ इज़ कंट्रोल, नहीं हो रहा है तो मैं कहीं समझ में नहीं आया तो मैं जाके किसी और को पूछती हूँ या पूछता हूँ। ओके नेक्स्ट, ये देखिए अभी जैसे ये लीडरशिप, बायां भी रास्ता है दायां भी रास्ता है। आपने जो टारगेट अचीव किया है करना है, मुझे 40 साल की उम्र तक वाइस प्रेसिडेंट बनना है मल्टीनेशनल कंपनी का, तो उसकी तरफ बाईं तरफ जाना चाहिए दाईं तरफ जाना चाहिए। जैसे मैं पूना इज़ ए गुड सिटी, is a good city, very well, law and order, otherwise, weatherwise. But I went all the way from here to हिमाचल प्रदेश। मुझे मालूम था यहाँ पे मुझे एस्केप में रह के प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट अच्छा मिलता रहेगा, पगार बढ़ती रहेगी, बट आई विल नॉट गेट व्हाट आई वांटेड टू मेक इन माय करियर। नेक्स्ट, द सेल्फ डेफिनेशन गोल्स एंड फॉलो कंक्रीट एक्शन प्लान, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, दोबारा है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जैसे आपसे मेरे से पहले भी बोला कि कम्युनिकेट करना सीखिए, वो बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है, बात करने से ही पता लग जाता है, इंग्लिश बोलने के ढंग से ही पता लग जाता है। अरे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, पूना में इतनी इंग्लिश की क्लासेस हैं, इंस्टीट्यूट में भी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, ज्वाइन देम, अटेंड देम। ज़्यादा से ज़्यादा गलती बोलेंगे ना, बट नेवर माइंड, यू लर्न समथिंग। टीवी पे क्या इंग्लिश के प्रोग्राम देखिए, और जहाँ तक वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए, यू विल बी फॉरगिवन अगर आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पर ये है कि मैं जो ठीक से इंग्लिश नहीं बोलनी आती, वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। आगे नेक्स्ट, ये देखिए इसमें लीडर कौन है, सबसे आगे वाली बतख, एंड आई वांट यू टू बिकम वन ऑफ देम। बी विलिंग टू एडमिट एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स और वीकनेस। अगर मेरी गलती हुई है एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ये आई फॉरगॉट, मेरी गलती, आई शुड हैव टोल्ड यू बेटर, आई शुड हैव कम्युनिकेटेड टू यू, यू नो दिस। कंटिन्यू टू एजुकेट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, हर एक चीज़ में सीखने के लिए, हर एक चीज़ में सीखने के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ ही एग्जाम्पल बताई, जूते की एड़ी घिसी हुई है, या मूछ के बाल बचे हुए हैं, या कैसे बुक्स रख रहे हैं। अब अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में जाएं, वहाँ पे जो कैडेट्स नहीं होते रूम में, तो उनके रूम का कई बार इंस्पेक्शन होता है, वो कपड़े फोल्ड करके ठीक से रखे हुए हैं, उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, या जूते टेढ़े पड़े हुए हैं, एक जूता उल्टा पड़ा है सीधा पड़ा है, दैट ऑल रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। तो इट्स नॉट ओनली दैट कि आप क्लास में क्या कर रहे हैं, आपका रूम कैसा है, क्या क्या है आपकी। जैसे एक कागज़ की फाइल चाहिए, वो निकाल ली, एकदम मिल गई, या उसको इधर उधर ढूंढने उधर ढूंढने, कहीं रखी तो थी यार, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखी है, याद नहीं, दैट्स ए नॉट दिस थिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड देखिए लर्न टू मेक एक्शन प्लान अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, कि मुझे सुबह इतने बजे उठने का है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, या वॉक पे जाने का है, फ्रेश एयर में बैठने का है, इतने घंटे पढ़ाई करने का है, नहाने का धोने का है, क्लास में अटेंड करने का है, जो भी करने का है उधर। शुड लर्न टू मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर सेल्फ। हम सबको चेंज करना होता है। द लिस्ट बेनिफिट्स यू, एड टू अदर्स ऑफ ई चेंज, इस्टेब्लिश टाइम टेबल एंड कमिट योर सेल्फ। ऐसा नहीं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आज करना है आज करना है, हफ्ते भर में करना है हफ्ते भर में करना है, महीने भर में करना है महीने भर में करना है। नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन कैंपस, ये जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये दिस विल टीच यू एवरीथिंग। टीम बिल्डिंग कैसे, अगर आपस में मिलकर कैसे काम हो सकता है, टीम बिल्डिंग। आपको जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूट की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सिखाएं कि वो आपको कैसे जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। शो कंसिडरेशन, कि वहाँ पे जैसे भी है, कोई अगर भूखा है कोई या है कुछ, उसको कैसे कंसिडर करें, कंसिडरेशन कि उसने होमवर्क नहीं किया है, बीमार है, आपको मालूम है उसके पेरेंट्स वहाँ पटना में है किधर हैं, गो टू हिज और हर रूम, टेक हिम टू डॉक्टर, टेक हर टू डॉक्टर, दवा खरीदनी खरीद लो, खरीद के लेके आओ, दैट इज़ व्हाट कंसिडरेशन। थिंक विन विन, हम सब बराबर हैं, मैं भी जीतूँ और आप भी जीतू हैं। मैं आपको दिखाऊंगा खरगोश और इसकी टॉर्टोइज वाली कहानी का, ये अभी ट्रांसफर वो दिखाऊंगा, वो इन्होंने सिचुएशन कैसे किया था उन्होंने। चूज़ वर्ड केयरफुली, बात कर रहे हैं ध्यान में रखिए। मैं बताऊँ आपसे एक इंसिडेंट, आज से कोई 2003 की बात होगी या 2004 की बात होगी।
And every year I used to employ about 5, 6, 6, 7 people of your institute. I was working on multinational. It was not easy to get a job there, but I used to employ. तो हमने एक मेरिडियन होटल है पूना में, 5 स्टार होटल है, वहाँ का कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया था इंटरव्यू के लिए। मैं और एक फॉरेनर हमारे साथ काम करता था, वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए। तो आपके इंस्टीट्यूट के कई लड़के लड़कियाँ आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। आई कुड मेक आउट वो यूनिफॉर्म से, और कोट पहना हुआ था, टाई पहनी हुई थी, और IIBM लिखा हुआ था टाइज में वगैरह वगैरह। तो दे डिडंट नो। एक हमको चाकन में था, तो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, 15-20 मिनट। बिफोर सिटिंग आई वांट टू गो टू बाथरूम। उधर गए तो दो आपके इंस्टीट्यूट के लड़के आपस में बात कर रहे थे, गाली दे के। अरे वो गधे लोग अभी तक आए नहीं हैं, हम फालतू बैठे हुए हैं। अरे उनको नहीं मालूम था कि हम ही लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो जो हमारे मेरे साथ फॉरेनर था, उसको तो इंग्लिश बोलता था, उसको तो समझ में नहीं आता था क्या बात हो रही है। मुझे सब समझ में आ रहा था कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं। एंड द फैक्ट वाज वी डिडंट सिलेक्ट एनीबडी फ्रॉम IIM दैट ईयर। दूसरी गलती IIM के आपके स्टूडेंट्स ने की थी कि वो इंदिरा इंस्टीट्यूट पास में, वहाँ के लड़के लड़कियों को बोल दिया था कि हमारे वहाँ इतने बजे इंटरव्यू है। वो लोग भी आ गए थे, तो उन्होंने किया। पर द वेरी फैक्ट कि यू आर इन ए MBA इंस्टीट्यूट, यू शुड फॉरगेट कि गाली देना भी कुछ होता है। अगर वो कोई दूसरा ये बोलता है कि हाँ कुछ रास्ते में ट्रैफिक होगा या बारिश होगी या कुछ होगी, उस वजह से हो सकता है फंस गए ये लोग, ऐसा ही कुछ हुआ था। पर नहीं, वो गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे। और उनको मालूम नहीं था कि बाजू वाला ही आदमी इंटरव्यू लेने वाला है उनका। ओके, नेक्स्ट। ओके, स्माइल एंड बी काइंड। स्माइल इज मेन थिंग, रिमेंबर। कोई भी मिले स्माइल दीजिए। बी ए गुड लिसनर। दूसरे सामने वाला क्या बोल रहा है सुनिए आराम से। यू मे एग्री और डिसएग्री डिफरेंट। बी एंथुसियास्टिक कि करना है, ये होगा, मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं करूँगी। उधर एंड एक्सेप्ट मिस्टेक। गलती हो गई, हाँ भी मेरी गलती थी यार, आई शुड हैव टोल्ड यू, पर मैं भूल गया यार तुमको बताना। नेक्स्ट। इंस्टीट्यूट विल गिव यू द क्वालिटीज दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। मोटिवेशन टू सक्सेस कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो यहाँ पढ़ेंगे उसके बेसिस पे। कमिटमेंट कि मैं 7 बजे आपको मिलूँगा, मुझे आप फिक्र मत कीजिए साहब, 31 तारीख तक डिस्पैच हो जाएगा, आपने बोला है तो। इधर कमिटमेंट, माल मतलब इतना प्रोडक्शन निकालना है, निकल जाएगा। माल आना है, माल आ जाएगा। परचेज़ करना है, परचेज़ आ जाएगा। उसके लिए आपको खुद जाना होता है, खुद लिफ्ट करके लाना होता है, क्या करना होता है, यू हैव टू डू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, कैरेक्टर इफ ए पर्सन, it is of personal values, belief and personality. Positive thinking, positive believing, give more than what you get. And power of persistence. Persistence बोलते हैं कि आज मैं काम करूँगा, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, करूँगा। And that is what the institute will help you in achieving all this. The only thing you should have to be committed, you should have to be determined कि मुझे ये मैं करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं this is what is required, and you will be able to do it. Next. अभी देखिए, जरा रुकना। अभी आपने सबने सुना होगा खरगोश और टॉर्टोइज की कहानी। पहले जो हैं इसमें 3-4 पार्ट्स में, पहले 2-3 पार्ट्स जो हैं वो सबको पढ़े हैं, पर उसके बाद वाला जो मैं दोबारा बताऊंगा। चालू कर दीजिए जल्दी जल्दी करके। तो खरगोश और शेर उसका था टॉर्टोइज की कि कौन जीतेगा। तो खरगोश ने बोला कि मैं सोचा कि मैं तो जल्दी से भाग सकता हूँ, और टॉर्टोइज ने बोला चलो आगे। नेक्स्ट प्लीज। वो जल्दी जल्दी भागे गया, फिर वो आगे जाके खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। टॉर्टोइज धीरे धीरे चलता रहा, वो जीत गया। बाद में खरगोश अफसोस मना रहा है कि अरे मैं सो गया इसलिए मैं हार गया। दिस कैन हैपन इन इंडस्ट्री ऑल्सो, इट हैपन्स। पर आगे का देखिए, चलिए नेक्स्ट। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट दिस इज नॉट द फाइनल। नेक्स्ट। द स्टोरी कंटिन्यूज। अभी ये है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसने बोला, सोचा खरगोश ने कि मैं क्यों हार गया, क्योंकि मैं सो गया था, मैं थक गया था पेड़ के नीचे। मैंने सोचा वो तो बहुत पीछे है, मैं सो गया था। करियर में भी यही होता है।
player was disappointed at losing the race, and he did some soul searching. He realized that he lost the race only because he had overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, he maybe would have beaten the tortoise. आगे तो उन्होंने बोला दोबारा करते हैं. आगे चलिए. दोबारा हुआ. This time the खरगोश went all out and ran without stopping from start to finish. He won the by several miles. पर आगे क्या होता है देखिए. चलिए. The moral of the fast and consistent will always beat the slow and steady. देखिए होता क्या है कि जैसे यू आर वर्किंग, सपोज यू आर वर्किंग एज प्रोडक्शन मैनेजर, हैव हर एक महीने आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यू आर सक्सेसफुल मैन. पर वो अगर आप ऐसा सोचें अरे यार ईयर एंड कब है, मल्टीनेशनल कंपनी दिसंबर का है और मार्च में बैलेंस शीट बनती है, खाली स्लो चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है, खाली मार्च दिसंबर के महीने में बढ़ा दिया, फिर नीचे आ गए, फिर मार्च के महीने फिर बढ़ा दिए, then you are not a competent professional worker. Every month you have to increase. Fast and consistent will always beat the slow and the steady. Next. अगला लें. The tortoise did some thinking this time and realized that there was no way he can beat the hare of the race, and it was correctly formatted. तो उसने क्या किया, सोच रहा है खरगोश कि मैं कैसे जीतूं, सॉरी टॉर्टोइज. नेक्स्ट. तो उसने बोला कि दोबारा एक बार करते हैं. अभी आगे वो नदी के रास्ते से जाएगा, और जो दोबारा जो दौड़ हुई तो उसमें क्या खरगोश आगे भागता भागता आया, पर टॉर्टोइज ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो नदी का रास्ते में पड़ेगी, और खरगोश को तैरना नहीं आता था या जल्दी से तैर नहीं सकता था टॉर्टोइज से, बेचारा वहाँ के रुक गया. नेक्स्ट. तो वही देखिए अभी खरगोश सोच रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, आगे बढ़ूं, व्हाट शुड आई डू. नेक्स्ट. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पीछे जाइए. द फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर. खरगोश उसने टॉर्टोइज ने क्या सोचा कि मेरा क्या है, इसको खरगोश को तैरना नहीं आता है, तो इसलिए मैं वैसे वो रास्ता ढूंढूं जिसमें नदी पड़ती है, वो क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट. ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई. अभी जो मेन इम्पॉर्टेंट वाली बात है, जो खरगोश ने टॉर्टोइज को बोला दिस टाइम यू हैड pretty good friends and they did some thinking together but realized that the last race could have been much better. आगे चलिए. तो होता क्या है अभी आगे दिखाएंगे आपको कि उन दोनों में दोस्ती हो जाती है. वो जो रैबिट है, जो खरगोश है, भागता हुआ नदी किनारे जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, और वहाँ पे जो टॉर्टोइज जो है वो अपनी पीठ पे बिठा के रैबिट को नदी क्रॉस कराता है, और उसके बाद में खरगोश जो है वो अपनी पीठ पे टॉर्टोइज को बिठा के ले जाता है, और दोनों जीतते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू एज MBA एंड योर लाइफ ऑल्सो, इन करियर ऑल्सो. दैट इज़ व्हाट आई डिड. मुझे याद है कि वंस आई एम स्लाइटली डाइवर्टिंग कि शायद इट मस्ट हैव बीन 1984 और 85. चाकन प्लांट एटलस कपो का था, ग्लोबल प्लांट, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए सब कुछ बनता था, और 3 ग्लोबल प्लांट थे, एक ब्राज़ील में था, एक बेल्जियम में था, एक इंडिया में बना रहे थे. आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट. उसके लिए 24, मुझे मालूम नहीं था कि 24 परमिशन लेनी होती हैं, मतलब वो एक्साइज का परमिशन, वेट का परमिशन, इसका फैक्ट्री इंस्पेक्टर का परमिशन, ये पॉल्यूशन बोर्ड का परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन. और मेरे जो कंपटीटर थे मेरे साथ में जो थे, ही वाज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दोज डेज. मैं ही वाइस प्रेसिडेंट था, वही वाइस प्रेसिडेंट थे. वो दून स्कूल के पढ़े हुए थे, देहरादून में एक दून स्कूल है, वहाँ राजीव गांधी का टाइम था, तो वो राजीव गांधी भी उसी स्कूल का पढ़ा हुआ था. तो वो एक ट्रिप दिल्ली का मारेंगे, सारी परमिशन एक झटके में मिल जाएंगी, और मैं 10 चक्कर यहाँ पे पॉल्यूशन बोर्ड में मारता था. मुझे ये नहीं मिलता था कि चाकन में अर्थक्वेक कब आया था पिछली बार आखिरी, क्योंकि उसमें लिखना होता है कि अर्थक्वेक कब आया था आखिरी. शिमला ऑफिस है यहाँ पे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आ गया, उन्होंने बोला हम आपको दिखा सकते हैं पर लिख के नहीं दे सकते कब अर्थक्वेक आया था. सब उस चक्कर में थे. तो फिर क्या हुआ, आई हैड नो अल्टरनेटिव. अगर मैं खुद कर रहा था तो परमिशन टाइम में आई हैड लिमिटेड बजट एंड वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम की 64 वीक्स के अंदर प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, इतने करोड़ में फैक्ट्री बनेगी. 81,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया था. तो मैंने क्या किया, वो कॉल साहब को बोला कि यार ये जिम्मेदारी तुम लो परमिशन लेने का, ये मैं संभालता हूँ,
ऐसा करो, एंड वी आर completed to each other, but he helped me and we got all permission in time, and the day there was inauguration we invoiced the first compressor, and that is what it is. चलिए आगे चलते हैं, इनको दिखा देते हैं। ये देखिए वो खरगोश के ऊपर टॉर्टोइज बैठा हुआ है। आगे चलिए अभी और आगे, वो देखिए वो टॉर्टोइज के ऊपर खरगोश बैठा हुआ है। वापस टॉर्टोइज है, उसके ऊपर खरगोश बैठा हुआ है। और अभी आगे चलिए, एंड बाद में नीचे खरगोश के ऊपर टॉर्टोइज बैठा हुआ है, और दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यही आप लोगों को करने का है ज़िंदगी में, और इसीलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो इससे अगले वाला मैं स्लाइड दिखाने वाला हूँ, ये है 1930, आज से 80 साल पहले अमेरिका में एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनी थी। 102 फ्लोर थे, सबसे ऊंची दुनिया की बिल्डिंग थी। और उस समय जैसे बिल्डिंग बनाने में क्या होता था और आज क्या है, मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। वो दिखाइए, वो वाला, अगला वाला। ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया। नेवर गिव अप, ओके, लेट्स गो बिल्ड स्ट्रॉन्गर टीम्स। टीम बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। पहला था एटीट्यूड, सेकंड था क्वालिटीज, थर्ड इज टीम बिल्डिंग। अभी ये देखिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1929 में बनना शुरू हुआ था, 31 में कंप्लीट हुई थी 2 साल में। 102 फ्लोर्स हैं, 102 अभी भी है। अभी एक शिकागो में नई बिल्डिंग बन गई, इससे भी ऊंची है। अभी देखिए ये जैसे क्रेन से बनाई जा रही थी, आदमी काम कर रहे थे। अभी आगे हेलमेट वगैरह देखिए, एक ने एक कैप पहनी हुई है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है। नेक्स्ट चलिए, अभी तब और अब में कितना फ़र्क हो गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाज बिल्ड इन 930, सेफ्टी वुडंट बी इन्वेंटेड, उसमें सेफ्टी का बात ही नहीं था। वो देखिए वो आदमी वो क्रेन पे लटका हुआ है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, सेफ्टी रोप भी नहीं बांधी हुई। ये आज के ज़माने में नहीं चलेगा। फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा, आपको काम ताला लगा के चला जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी नाउ वट एवर यू डू, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, इतने बड़े बड़े वो हैं रेंजेस, और वो कुछ बेल्ट नहीं बांधी हुई, खंबे से कुछ बांधा हुआ नहीं, खड़े हुए कर रहे हैं। झटका लगेगा तो नीचे गिरेंगे। अभी और आगे आगे और आगे। नेक्स्ट, ये भी देखिए वो आदमी देखिए स्लोप पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए क्रेन से उठा रहा है, रोप से उठा रहा है। वो वाला आदमी देख कोने पे देखिए खड़ा हुआ है, नीचे गिरेगा तो नीचे वो नीचे वाली बिल्डिंगें अगले स्लाइड्स में नज़र आएंगी। कोई 10वें फ्लोर पर, मतलब उसे 102 फ्लोर बनाए थे, वहाँ से गिरेगा तो उसकी बोन भी, हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट, ये देखिए किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, किसी ने रोप नहीं, सेफ्टी रोप नहीं बांधी हुई। आज के ज़माने में नहीं चलता है। ये मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेक्स्ट, वो देखिए वो फिसलेगा तो नीचे गिरेगा, नीचे का बैकग्राउंड में। जस्ट जंप द लेफ्ट एंड आई विल बी सेफली ऑन दोज लूज स्कैफोल्ड बोर्ड्स। ओके, आगे। और देखिए बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और वहाँ जाओ नीचे, नीचे देखिए, नीचे की बिल्डिंग देखिए कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंग है कि ऊपर से कोई गिरेगा तो उसकी वो जिंदा बचेगा ही नहीं। फिर भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो एक करके नीचे उतरे हैं और खाएं, वो आराम भी कर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ एज ए मैनेजमेंट इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले उसको भेजिए ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, फिर आपका बॉस आपको डंडा देगा। When I joined DuPont, DuPont is an American company with all over the world, उनके कुछ 600 प्लांट हैं। ये जो कमीज आपने या मैंने पहनी टेरिकॉट का, टेरिकॉट इज़ देयर पेटेंट। ये जो इसमें पेंट और ये और क्या क्या नहीं बनाते हैं वो लोग। उन्होंने एक बात, व्हेन आई वाज अपॉइंटेड हियर फॉर इंडिया, आई वाज टोल्ड कि अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ, यू हैव टू पर्सनली गिव ए रिंग टू मैनेजिंग डायरेक्टर इन अमेरिका। और हुआ भी ऐसे ही। एक लड़का था भोसले, उसके नाम से, उसका अंगूठा दब गया प्रेस में, नाखून क्रश हो गया था। तो मैं डर रहा था कि अरे मैं नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अगर मैं नेक्स्ट डे बोलते या 12 घंटे का टाइम का डिफरेंस था, 10.5 घंटे का यहाँ और ओहायो अमेरिका में। मैंने फ़ोन किया एंड ही वाज वेरी नाइस, एंड मैंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, आई एम सॉरी बट दिस विल नॉट हैपन अगेन, वगैरह वगैरह। देन ही सेड
tell me concretely, Mr. Saxena, what steps you are taking so that it will not repeat. And I said, I'll call you back. He said, not only call back, send me telex also. तो उसमें मैंने बताया कि वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाएंगे कि अगर बच्चे हाथ होगा तो मशीन आएगी नहीं आधे तक, नीचे तक नहीं जाएगी. अगर किसी भी वो जो प्रेस में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वी पुट ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऑन बोथ दी साइड्स, कि अगर बीच में कोई हाथ डालेगा या हाथ बाई मिस्टेक भी हो गया तो मशीन आएगी नहीं, आधे तक आएगी और रुक जाएगी. And he immediately sanctioned the amount from the America. He said whatever expenses are there, approved. And I got the facts in few minutes back. And that is what it is there. कि एक्सीडेंट के बारे में और वो कंपनीज ऐसी हैं जैसे ड्यूपॉन्ट है, वहाँ बस के अंदर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि सेफ्टी बेल्ट लगी है, पर उस बस में अगर ड्यूपॉन्ट का कोई एम्प्लाई जो कंपनी की बस में आते थे, सब में सेफ्टी बेल्ट हम लोगों ने लगवा के ली थी. उसमें कंपनी में ऐसा था कि कोई भी एम्प्लाई, खासतौर स्टाफ, अगर बॉम्बे गया अंधेरा होने के बाद में ही कैन नॉट कम इंटर सिटी बाई रोड, तो रात को रहेगा वहाँ पे, होटल का खर्चा कंपनी देगी, पर रात को मतलब ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा स्कूटर पे एक्सीडेंट हो जाए. टू व्हीलर्स पे चलना अलाउड ही नहीं था वहाँ. हाँ, कंपनी को लोन चाहिए तुमको कार खरीदने के लिए, छोटी कार के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड यू विल गेट द लोन. And that is what it is. That I want you all to get these thoughts, how to take care of your people, or you will all have the possibility of this. Next. वही अगला, ये बेसिकली मैं ये आपको इसलिए दिखा देगी, इतनी ऊंची बिल्डिंग है और वो उधर कोई बेल्ट नहीं बांधे हुए, कोई हेलमेट नहीं पहने हुए, कुछ नहीं, गिरेगा नीचे तो उसकी वो हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी. The great view of the New York City 1930 with the Center Park at the very top corner. देखिए इतनी ऊंची बिल्डिंग से ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं. ये चढ़ रहा है, ये देखो चढ़ा हुआ, टाइट कर रहा है, फिसल जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा. नेक्स्ट. And this, if you are MBA students, you have to take care कि nothing like this will happen, should happen. और खत्म हो गए. नेक्स्ट. अभी देखो, अभी now things have changed. Are not you glad that those times have changed? These photos were taken by Luis, जिसने खैर फोटो लिया था. ओके ओके हो गया. थैंक यू वेरी मच. एंड देखिए ऐसा है, ये जो MBA की इंस्टीट्यूट, यू आर लकी टू बी हियर. लर्न एवरीथिंग, हाउस कीपिंग, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बात करने का तरीका, पढ़ाई कैसे, हाउ टू प्लान योर ओन टाइमिंग. And then nobody can stop your growth. Nobody can stop your growth in your life. और अगर एक भी आपने लूज होल छोड़ दिया कि नहीं नहीं यार वो तो होता ही रहता है, तो आप पीछे रह जाएंगे. आई थिंक आपको मैंने आपके डीम को एक बार बात की थी. I have one son and one daughter. My daughter is married and settled in America. My son is in Bombay, quite a senior position. उसने इंजीनियर किया था, MBA किया था यहाँ पूना से, यहाँ से नहीं कहीं और से किया था. पहले मैं उसको बोलता था, वरुण गेट अप, 10 बजे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको 10 बजे कॉलेज वो चालू होता था, कॉलेज जाने का है. क्या पापा अभी खाली 8:30 बजे आप सोने भी नहीं देते. हाँ. और द सेम बॉय व्हेन ही वाज MBA स्टूडेंट, रात को सुबह 3 बजे तक वो काम करता था, प्रोजेक्ट करता था, 6 बजे खुद ही अलार्म लगा के फिर उठ के पढ़ाई करता था. एंड नाउ ही इज हेड ऑफ द वन ऑफ द मार्केटिंग ऑफ वन ऑफ द कंपनीज देयर. और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उसके काम करते हैं, वो भी और उसकी वाइफ भी, दोनों की साल की इनकम कुछ 40 लाख के करीब है. जो और वो भी ही इज़ हार्डली अबाउट 34-35, उसकी वाइफ होगी 30 के करीब की. तो ये आप सब भी कर सकते हैं, आप सबके भी हाथ में, खाली सोचने का ढंग है. यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल टाइमिंग, पर्सनल लाइफ, एंड देन दुनिया आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, ध्यान में रखिए. एंड आप सब करेंगे, सब कर सकते हैं. ये इंस्टीट्यूट में सब पॉसिबिलिटीज़ हैं. आई हैव बीन फॉर लास्ट 10 years, 14 years आई हैव बीन कमिंग विद दिस इंस्टीट्यूट. And I know
कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल ग्रो। और अगर मेहनत करने को तैयार नहीं है तो आप मारे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।